Hello everyone, welcome to Maneuver TISNET 2022 GK and Current Affairs series guys. This is the part 3 and I already given the part 1 and part 2 where I already discussed the important expected questions. It means current affairs से जो most expected areas है जहां से question frame हो सकते हैं, that I already discussed. And if you want to take the more benefit, इसका और भी ज्यादा अच्छे से benefit उठाना है इस series का, because जो भी topics मैं discuss कर रहा हूँ guys, यहाँ से 90% I can say questions may be possible to frame. Why I am saying so confidently? बिकॉज अभी आज के डेट में लॉ सीटी 3 इयर्स का एग्जाम हुआ है, 80% क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द मैन्यूवर कंटेंट. जो हमने करंट अफेयर्स पॉइंट से डिजाइन किया था वहां से 80% क्वेश्चन, यू कैन से ऑलमोस्ट मोस्टली क्वेश्चंस उस पीडीएफ से किसी न किसी वे से फॉर्म हुए थे. अगर किसी ने अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा तो डेफिनेटली ही विल अटेम्प्ट द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विद द 100% एक्यूरेसी गाइज. ओके, सो एज अ टिसनेट पॉइंट ऑफ व्यू 2022, सो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है लास्ट 3 ईयर का, जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे हाईली एक्सपेक्टेड है गाइज. तो आप इसको नोट्स बना लो, उस नोट्स को बना करके आप चाहो तो उस पर अपने एंड से भी थोड़ा सा एफर्ट दे दो, क्योंकि सारा एफर्ट मुझसे ही मत कराओ, आप भी थोड़ा सा अपना एक नोट्स बनाओ, वो सारे पॉइंट्स को लिखो, उसको गूगल करो, अच्छे से स्टडी करो, जिस वे में मैंने बताया कि स्टैटिक ओरिएंटेड, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, दोनों वे में प्रिपेयर करो. सो डेफिनेटली आई कैन गिव द श्योरिटी कि वहीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रेम होंगे as per my personal experience last 3 to 4 year guys. Okay, and if you want to study in a deep with us, so guys, Maneuver has started the batch for the TISNET 2022 and 2023. So here you can join and you will get the live classes, ebooks, shortcut method for the mathematics and reasoning, especially doubt classes, recorded video where you can clear your basic concept, topic wise test, which is very important to increase your speed. WhatsApp group 10,000 plus question for the practice, and mentorship, which is very important. The mentor will guide you as per your exam, as per your performance. Okay, and if you want to the part of this batch, so you can fill this Google form. Our counselor will contact you and guide you in a better way regarding the exam and batches. And if you want to contact to us, so you can call on this number 8828581455, and you can visit our website www.maneuveredu.com. now come to the discussion part. Just keep a paper pen with you and ये जो questions मैंने form किया ना, इस questions को लिख लो. ओके, इस क्वेश्चंस को लिख लो, इससे रिलेटेड सारे स्टडी आप अपने एंड से कर लेना. एंड हियर आई विल ओनली टू शो हाउ द क्वेश्चंस में बी फ्रेम, मतलब कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकता है इस न्यूज पे एमसीक्यू फॉर्मेट में, वो प्रैक्टिस करेंगे. और भी मैं चीजें डिस्कस करूंगा, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप अपने एंड से भी थोड़ा एफर्ट आपको देना है तो जस्ट नोट डाउन एंड R&D अबाउट दिस न्यूज, एंड किसी न किसी वे में क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है. तो हु इज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ NASSCOM? NASSCOM is a very important non-profitable and a non-governmental organization which work for the software policy, especially in India. Okay, so काफी well known organization है, and its headquarter is in New Delhi and it was founded in 1988. Okay, so these two static information is also important. Just try to find out which one is the right answer. Priyanka Mohit, Poonam Gupta, Rekha M. Menon and Indra Nui. So here you can see this is the first women. So that's why guys, this is the very important. Okay, so remember, and some details is also given here related to the NASSCOM. So right answer is a Rekha M. Menon, and Accenture India's chairperson Rekha M. Menon has been appointed as the chairperson of the National Association of the Software Service Company, which is known as the NASSCOM. So becoming the first women to take the top role in the software lobby group, 13 years history. So that's why this question is important. रेखा मेनन से रिलेट करके आप और भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो. जस्ट मेक योर ओन नोट एंड रिलेटेड टू दिस न्यूज यू कैन प्रिपेयर from your side also. Next question is a national dialogue on UN Food System Summit 2021. India take up which action track for it? So ये जो summit था स्पेशली फॉर द फूड सिक्योरिटी के लिए, आपको पता है कि बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये मेलन्यूट्रिशन का प्रॉब्लम अभी पहले से तो था ही, अफ्रीकन एंड इंडिया ऑल्सो, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन, सो फूड इशू जो है प्रॉब्लम बहुत फेस हो रहा है. ओके, सो यूनाइटेड नेशन जो फूड सिस्टम प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम ने इसके लिए एक समिट बनाया था एंड डिफरेंट एक्शन इज टेकन. सो व्हाट इज द एक्शन ट्रैक बाय द इंडिया? तो सेफ and nutrition food, sustainable consumption pattern, nature positive production, advanced equitable livelihoods, and resilience and vulnerabilities, stress and shock. So what is the action track for the India? This is the important as per us and our exam point of view. So right answer is a advanced equitable livelihood. This is the track for India. Okay, here you can read in the details. India has volunteered to action track 4, which is the advanced equitable livelihood. In order to take this further, Government of India has constituted the high-level interdepartmental group. The main objective of the group to hold the national dialogue
with all the stakeholder of agriculture and food system to explore the national pathway in creating the sustainable food system in India. This is a very important line. It means जो continuity है वो बनी रहे. Okay, the aim to review the issue of evidence that prevent the emerge of advanced equitable livelihood. So ये आपको remembers रखना. This is the very important for exam point of view. Okay, so for more details और भी इससे रिलेट करके आप स्टडी करना है तो कर सकते हो, बिकॉज इफ आई विल डिस्कस इन द डिटेल्स तो वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा हो जाता है, तो आप लोग बहुत स्किप करने लगते हो, तो ऐसा नहीं करना होता है, बिकॉज हियर आई डिस्कस द इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो इसको आप अपने एंड से, एंड इफ यू वांट शुड आई एक्सप्लेन इन डिटेल, आप कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हो. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे या फिर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, इट्स डिपेंड अपॉन योर कमेंट गाइस. जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप डिटेल्स में बोलोगे, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो इन अ डिटेल्स ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. ओके, एंड और भी डिटेल्स में स्टडी करना है तो आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, वेयर वी ऑलरेडी डिस्कस जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उस पे इन डिटेल सारे एस्पेक्ट को लेकर के हम डिस्कस करते हैं. ओके, सो दैट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. चाइना नेम इट्स फर्स्ट एवर मार्स रोवर. ओके, सो जो उनका फर्स्ट मार्स सक्सेसफुल मिशन रहा है उस रोवर का नाम क्या है? बेसिकली लास्ट टाइम चंद्रयान से भी काफी क्वेश्चंस आए थे व्हेन इट वाज लैंडेड ऑन द मून, बट बिकॉज ऑफ द सम प्रॉब्लम्स इट वाज नॉट सक्सेसफुल. सो इट वाज अ ताइवान, जुरांग, आर्मिटीज and Presi. What is the name of that Mars rover which is successful mission of the China? Okay, very important from the science and technology field. So see, the right answer is a Jurang. Jurang it means होता है आग, जो होता है ना फायर, आग का देवता, especially in Chinese language. So just remember the name. एंड वन मोर थिंग, आपके लिए एक टास्क दे रहा हूं कि वो मार्स के कौन से पोल पे, इट मींस नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे लैंड किया है, ये आपको आंसर करना है कमेंट में. सो आई वांट टू सी कि कितने लोग इंटरेस्ट से देखते हैं, कितने लोग इंटरेस्ट से प्रिपेयर करते हैं. ओके, सो इफ यू नो सो दैट इज गुड, अदरवाइज थोड़ा सा R&D आप अपने एंड से गूगल पे कर लेना. ओके, नाउ सी द इन डिटेल्स. चाइना हैज नेम इट्स फर्स्ट मार्स रोवर जुरांग after an ancient fire god ahead of landing the attempt on the red planet in May. The China National Space Administration CNSA, this is also very important, just remember the name of the Chinese Space Agency. ये sometime एक मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, what is the name of the Chinese Space Agency? तो अगर से पता है तो that is fine, otherwise unnecessary, इतने small informations के लिए हमें unnecessary question को skip करना होता है. Okay, revealed the name the 6th Chinese space day held in the Nizhang, the Chinese name of the Mars. Important part इसका क्या है वो मैं आपको explain कर देता हूँ, because after this successful event the US, China is the second nation to make this successful achievement. Okay, so just remember the name of the rover. and मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछा है, आपको कमेंट में देना किस पोल पे ये लैंड किया है. सब लोगों को आंसर करना जो भी केयरफुली इस वीडियो को देख रहे हैं. ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्वामित्व स्कीम एसोसिएटेड विद? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट मार्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम. गाइज मेरा खुद का ये अजम्पशंस है कि ये क्वेश्चन 90% इस पे क्वेश्चन फ्रेम होगा टेस्ट एग्जाम में. ओके, एज पर द लास्ट ईयर जैसे गरीब कल्याण स्कीम से आया था, बिकॉज दिस ईयर स्वामित्व स्कीम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम टू गिव द प्रॉपर्टी राइट्स. एंड जो भी रूरल्स एरिया में जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो लैंड डिस्प्यूट होता है, लोगों के पास पेपर नहीं होते, लोगों के पेपर्स गुम हो गए हैं, फ्लड जो आते हैं उसमें कहीं पे मिस हो गया है, सो XYZ रीजन वॉट एवर, या फिर किसी दूसरे प्लेस पे रहे बट उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है. सो दिस इज द स्कीम फॉर दैट. सो सर्वे ऑफ विलेज, स्ट्रीट वेंडर, यूथ राइटर, स्किल इंडिया, तो मैंने मोस्टली आपको एक्सप्लेन कर दिया है. आई होप कि यू विल गेट द आइडिया कि दिस स्कीम इज फॉर व्हाट. सो स्वामित्व इट्स अ सर्वे ऑफ विलेज बेसिकली, एंड here you can see Prime Minister Narendra Modi launched the distribution of e-property card. It means जिसके पास अगर से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, गवर्नमेंट रिलीज द प्रॉपर्टी कार्ड अंडर द स्वामित्व स्कीम ऑन द नेशनल पंचायती राज. वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स सेलिब्रेटेड ऑन 24th April. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. ओके, and which amendment is related to the Panchayati Raj? 73rd amendment is related to the पंचायती राज. ओके, इसके हायरार्की को भी अंडरस्टैंड कर लेना. दिस इज द इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन, जो होता है ना ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. ओके, सो ये जो हायरार्की होती है ना, ये विलेज साइड का और जो सिटी साइज का, इस दोनों को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज इस पे क्वेश्चंस बहुत फ्रेम होते मैंने देखा है. ओके, सो व्हाट आर द अदर इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज गिवन हियर, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड. एंड इनिशियली इट विल बी इंप्लीमेंटेड इन द 6 स्टेट, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश. इस पे इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि स्वामित्व स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड या फिर विल नॉट इंप्लीमेंटेड इन विच स्टेट. सिंपल सा इस तरह से 3 स्टेट का नाम दे देगा, एक स्टेट दूसरा कोई दे देगा, सिक्किम, मिजोरम या फिर
वेस्ट बंगाल, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ऑड मैन आउट टाइप में भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है स्वामित्व स्कीम पे, बिकॉज इनिशियली इट्स लॉन्च इन ओनली 6 स्टेट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, ये रिमेंबर्स कर लेना। ऑड मैन आउट टाइप के क्वेश्चन में मोस्टली पॉसिबिलिटी है यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाजियाबाद नगर निगम इन उत्तर प्रदेश लिस्टेड इटसेल्फ एट BSE। ओके, सो बिजनेस ओरिएंटेड न्यूज है थोड़ा सा, एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। मार्च 2021 एंड सक्सेसफुली रेज हाउ मेनी रुपीज करोड़, इट मींस करोड़ में, बाय इशूइंग द म्युनिसिपल बॉन्ड प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस यूजिंग द BSE बॉन्ड। ओके, सो 50, 100, 150 एंड 250 करोड़ कितना का फंड रेज किया है गाजियाबाद नगर निगम उत्तर प्रदेश ने आफ्टर लिस्टिंग इन द BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो दिस इज द सेकंड गवर्नमेंट यूनिट्स आप बोल सकते हो इस तरह से, नगर निगम है विच इज लिस्टेड इन द BSE। ओके, सो इसका राइट आंसर है 115। सो व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज हियर इज समथिंग फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट एवर ग्रीन बॉन्ड इशू बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द कंट्री, and this is the second municipal corporation to raise the fund in the state of Uttar Pradesh, and first one was the Lucknow Municipal Corporation। important part क्या है यहाँ पे, because it's related to the BSE, that's why it's important। government एक unit है and it's listed, so because of this reason and first time it's issue the green bond। so ये सब जो सारे points है ना, इस news को थोड़ा सा uniqueness बना देते हैं, that's why expected हो जाता है एग्जाम्स के लिए। Now come to the who top the Forbes annual billionaires list for year in row। okay, जो कंटिन्यू जो भी फोर्ब्स मैगजीन रिलीज करती है, तो उसके अकॉर्डिंग हु इज ऑन अ टॉप पोजीशन इन द बिलियनियर्स around the world। so Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg and Jeff Bezos। so I hope everybody know why I am taking this question, because Forbes magazine's report is very important। नोट डाउन कर लो टाइम मैगजीन को। टाइम मैगजीन जब भी रिपोर्ट रिलीज करेगी, पर्सन ऑफ द ईयर हु इज अ वेल नोन लीडर एंड ये जो सारी रिपोर्ट्स आते हैं ना, पावरफुल मैन, पावरफुल वेमेन्स, ओके, एंड जो सबसे ज्यादा पेड सेलिब्रिटीज, ये जो सारे रिपोर्ट्स है ना, यहाँ से ऑड मैन आउट टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। सो ये जब भी रिलीज होगा, सो डेफिनेटली आई विल कवर, बट आपके लिए बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट एरिया है, उसको नोट करके रख लेना, वहां से क्वेश्चंस हाईली एक्सपेक्टेड होगा। ओके, सो सी द राइट आंसर। आई होप यू पीपल नो जेफ बेजोस। ओके, so just remember, and amazon.com incorporated founder Jeff Bezos has topped the Forbes annual world billionaires list। so ठीक है, blah 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 something is given। आपको current billionaires list देखना है तो आप गूगल पे current जो billionaires list होते हैं top in the world, वो भी देख सकते हो। here I can show you। so see guys, this is the real time, अभी current में कौन किस पोजीशन पे चल रहा है आप देख सकते हो। so यहाँ पे सबसे टॉप पे अभी आज के डेट में अभी ये लाइव है। so Elon Musk is on a top, okay, and Jeff Bezos is on a second position। so जब ये Forbes magazine release करेगा, so according to that we have to remember, okay, and from India Mukesh Ambani is on a 10th position। so here you can also see, but जो particular magazine या फिर institutions release कर, so according to that this type of news is important। ओके गाइस, तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि चाइनीज रोवर मार्स के कौन से पोल पे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे लैंड किया है, वो आपको आंसर करना है। एंड जो मैंने ये सारे पॉइंट्स बताए, जस्ट मेक योर ओन नोट। okay, so according to that prepare in a details, otherwise you can be the part of the maneuver where you can study in the details to the point for your exams। okay, so if you are targeting the TSNET 2022-2023, so you can inquire about the online and live classes 8828581455। and if you want to visit on our website, so www.minervaedu.com, and don't forget to subscribe and share this video guys। so if you will subscribe, so you will get the continue update and you can share with your friends, so they will be also benefited। तो थोड़ा सा पुण्य का काम कर दिया करो, भगवान की कृपा भी आप पे बनी रहेगी। and you can follow us on a Facebook, Instagram and Telegram where you will get the latest update related to the exam and preparation, and don't forget to subscribe to get the continue updates। and अगर कोई suggestions है, कोई request है, so you can ask in the comment, and किसी particular topics पे आपको information चाहिए, वीडियो चाहिए, so definitely I will make, but वो उतने strong comment होने चाहिए, आपकी request होनी चाहिए, so definitely we will provide the information on that particular news। okay, just wait for the part 4। see you soon, thank you।